Hello students, again welcome back to evolution classes. So what we are going to study today, study in this lecture is what is the structure of the alveoli, what is its function, the number, its surface area, and what are the different kind of complications that we might be having if the collapsing occurs of the alveoli. Now the question that we need to understand regarding this case is very important. When we talk about from where the alveoli comes, you see from the conducting passage, from trachea, we all know trachea divides from the thoracic vertebra on the fifth level. It becomes the bronchi. The bronchi divides to become the bronchioles, and from the respiratory bronchioles we are going to have alveolar duct, and it expands and divides to become what? Alveolar sac, and this alveolar sac contains the alveoli. Now, how does this alveoli looks like? If we see, it gives a grape, it gives like a cluster of grape-like appearance, right? Like it is like, see this thing, if you see, it gives a cluster of grape-like appearance like this. Cluster of grapes. So this cluster of grapes is called to be as the alveoli. It approximately ranges how much in the lungs? It is around 300 million. Now, this 300 million of this cluster of grapes will definitely increase the surface area for gaseous exchange. This is a very important thing that you need to know. In the NCERT it is written, the alveoli increases the surface area for gaseous exchange. The statement is given like that. But we don't actually remember, or we don't actually give emphasis that how does this alveoli of the lung provides a large surface area. How does this alveoli of lung provides a large surface area for gaseous exchange? Because if we consider digestive system, we know the intestine contains a lot of villi-like appendix, and that increases the surface area for absorptions. But over here, these grapes of alveoli, which is in cluster, which is huge in number, 300 million, it is like huge. And it covers how much area? That's another question. Surface area I was talking about. The surface area is about 100 meters square. So you can assume this amount of area when it is covering. This amount of area when it is covering, it will give a huge surface for the gaseous exchange. Now, over here I have written one question. How does alveoli increases surface area for gas exchange? First reason is what? What is the first reason? You need to remember three reasons. Alveoli itself is elastic in nature. That gives the increase in the surface area, and also the number. The number itself of the alveoli gives huge amount of surface area. This is the primary two reasons why the alveoli increases the surface area inside the lungs for gaseous exchange. Now, so the two reasons, just two reasons you need to remember. What are the two reasons? Number of alveoli, which is around 300 million, and second, it itself is elastic in nature, elasticity of the alveoli. Second, sir, what will happen if it fails to do so? Means, if the alveoli fails to increase the surface area, what will happen, sir? Now, there will be a huge problem. I'm telling you what is the problem that we might be encountering. The problem that we might be encountering is the problem that first step-wise we need to remember. What is the problem? This is the question. What is the problem that we might be encountering? So the problem is actually three problems simultaneously we will encounter. First, occlusion of airway.
and occlusion of airway is called as asphyxia. Second, due to asphyxia, the air will not be able to come in that much. The oxygen will not be able to come in that much. Right? So as a result, there will be hypoxemia. Hypoxemia means, what is meant by hypoxemia, sir? Hypoxemia means when there will be less oxygen supply. So why there is less oxygen supply? The reason is, first there will be occlusion in the air inlet, and as a result there will be hypoxemia. But the carbon dioxide inside will build itself up, right? So as a result, it will lead to hypercapnia. This is increased carbon dioxide. Hypoxemia means decreased oxygen. Occlusion of airway, मतलब asphyxia का मतलब क्या बोला था? When the air will be unable to come in due to less surface area. If the surface area becomes very less, if the number of the alveoli comes down drastically, then only these three conditions can be given rise, which is a pathological condition, definitely. What kind of tissue is present in the alveoli? This is the next question. The tissue which is present in the alveoli, if you remember in the chapter animal tissues, there is this tissue which is a flat in nature, flat cells, and those flat cells are what? Which is involved in the diffusion, mechanism of diffusion. Those are called as the simple squamous epithelium. So the tissue which is present in the alveoli is what? Tell me. It is simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Now what are the cells which is going to be present in the alveoli? Now there, in your NCERT, the naming of one cell is given, but there are two kinds of cells which is present over here. Which will be identical over here. If you see this picture, I have mentioned two cells. Alveolar type 2 cells, pneumocytes, these are pneumocytes, and alveolar type 1 cells. What are these cells? And what are the other things that you have written over here, sir? Lamellar body you have written, macrophage you have written, the fluid itself you have written, there is a surfactant layer you have written. What are these? Now if you consider these pneumocytes, these are the cells. There are two types of pneumocyte which can be present over here, pneumocyte type 1 and pneumocyte type 2. Now in the context, we need to understand what will be the percentage of these pneumocytes. The percentage of alveolar type 2 pneumocyte is 5%. But type 1, it is around 95%. But there is a problem. There is a problem. Type 1 pneumocyte do not have that much of what? They don't have that much of regeneration property. उनके पास regenerate का क्षमता literally नहीं है. So the progenitor cells from where the pneumocyte type 1 comes is what? Pneumocyte type 2. Because type 1 का regeneration property very less है. And type 2 फिर इसके वजह से क्या बन गया बाबा? Type 2 हो गया progenitor cell. Progenitor for type 1. Understood or not? Yeah. It becomes a progenitor for type 1. Also, sir, इनका function क्या है? Type 1 will be involved in gas exchange. It will be involved in the mechanism of gas exchange. अब जब भी गैस एक्सचेंज करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा डिफ्यूजन हो रहा है. तो टाइप 1 किस किस्म का टिश्यू बना सकता है या फिर कैसा टिश्यू है वहां पे? फ्लैट सेल्स, स्क्वैमस सेल्स है. क्या में है? टाइप 1 में किस किस्म का सेल्स है बाबा? टाइप 1 में है स्क्वैमस सेल्स. टाइप 1 में है स्क्वैमस सेल्स, राइट? एंड देयर आर फ्लैट सेल्स. बट इन केस ऑफ टाइप 2 ये सिक्रीशन मैकेनिज्म में टेक पार्ट करता है. सर क्या सीक्रेट करेगा? This type 2 will secrete a surfactant which is called by the name as lecithin. First year में तुम लोग ये पढ़े थे बायोमोलिक्यूल चैप्टर लिपिड में. ये lecithin बेसिकली कंपाउंड लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है. इनफैक्ट इट इज अ फॉस्फोलिपिड. ये डाइग्लिसराइड से बनते हैं. ये डाइग्लिसराइड से बनते हैं. वी ऑल नो कि डाइग्लिसराइड में
पहला डाइग्लिसराइड में क्या होगा, अगर एक डाइग्लिसराइड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दोगे तो उसको फॉस्फेटिडिक एसिड बोलेंगे। अब उस फॉस्फेटिडिक एसिड का को अगर एच ग्रुप रिप्लेस कर दो कोलिन से, सो इट बिकम्स व्हाट, डाइपामिथिल फॉस्फेटिडिल कोलिन, DPPC. So it is the name of the surfactant, dipamithyl phosphatidyl choline, and its common name is what? Lecithin. It is a kind of compound lipid, right? And from where it comes, एक डाइग्लिसराइड के साथ तुम जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हो तब वो बन जाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। अब उस फॉस्फेटिडिक एसिड को का अगर एच ग्रुप रिप्लेस कर देते हो किससे, कोलिन ग्रुप से, तब वो क्या बन जाएंगे, फॉस्फेटिडिल कोलिन। कॉमन टर्म्स इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपामिथाइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, DPPC, एंड दैट इज द सब्जेक्ट। नाउ इट बेसिकली क्या है सर, फिर ये लैमेलर बॉडी क्या है सर, ये एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स जो फॉस्फेटिडिल कोलिन सीक्रेट करता है, लैमेलर बॉडी स्टोर करता है यो ही लेसिथिन को, इट स्टोर्स द लेसिथिन। अब जब भी हम लोग पढ़ेगा वो सरफेस में वो क्या कर देंगे, इसको सीक्रेट कर देंगे लैमिनार बॉडी से, समझ में आया, गुड। अब मैक्रोफाज क्या करता है सर, इसमें क्वेश्चन है, सेल्स हो गए, देखो एक एक करके यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो ही कंप्लीट करा दे रहा हूं। व्हाट सेल्स प्रेजेंट हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया यहाँ पे, कौन कौन सा सेल, टाइप 2 एंड टाइप 1, टाइप 2 का परसेंटेज 95%, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी मेरा गलती है, 5%, टाइप 1 का कितना है 95%, लेकिन उसका रीजनरेशन प्रॉपर्टी बहुत घटिया है, इसीलिए टाइप 2 से ही उसको टाइप 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टाइप 2 बिकम्स व्हाट, प्रोजेनिटल सेल्स, है ना, जहां से आ रहे हो तो उसको प्रोजेनिटरी बोलेंगे और तुम बोलेंगे नहीं, राइट। दूसरा चीज क्या बोले हैं यहाँ पे कि यहाँ पे किस किस्म का टाइप 2 का सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबॉइडल होंगे, कैसे होंगे बाबा, दिस इज क्यूबॉइडल, दिस इज गोइंग टू बी क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल्स होंगे, यहाँ पे स्क्वैमस होंगे, क्योंकि टाइप 2 सेल्स इज कंसर्न इन द सिक्रेशन ऑफ द लेसिथिन। सो सिक्रेशन जो सेल करता है वो क्यूबॉइडल सेल होते हैं, ये भी तुम लोग एनिमल टिश्यू में पहले पढ़े, और वहां पे डिफ्यूजन करने के लिए टाइप 1 सेल्स इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे स्क्वैमस सेल्स होंगे, गैस एक्सचेंज करेंगे। सर लैमिनर सेल्स क्या होगा, लैमिनर बॉडी क्या है, लैमिनर बॉडी वो है जहां पे टाइप 2 सेल जैसे सीक्रेटिंग निकालेगा, लैमिनर बॉडी में स्टोर करेंगे। अब जब भी जरूरत पड़ेगा वो सर्फेक्टेंट लंग्स को रैप अराउंड कर देंगे। अब बात है कि मैक्रोफाज, सर मैक्रोफाज कैसा है सर, मैक्रोफाज हो गया बाबा, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कौन इम्यूनिटी दे रहा है बाबा, मैक्रोफाज, एंड दिस मैक्रोफाज इज कॉल्ड एज alveolar macrophage, it is called as alveolar macrophage। सर लंग्स टिश्यू का खुद के पास क्या कोई मैक्रोफाज नहीं है, हाँ है, उसके पास भी है, बट alveolar macrophage is the primary immune cells which is going to provide innate immunity, मतलब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी देगा, क्या देगा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी देगा, इनेट इम्यूनिटी देगा, कोई उसको देखना ही नहीं है कौन सा पैथोजन आया मारो, कोई टेंशन नहीं है, इनेट इम्यूनिटी देगा, वो सबसे ज्यादा एल्वियोलर मैक्रोफेज करेगा। बहरहाल लंग्स के पास पाल्मोनरी मैक्रोफेज भी रहते हैं, बट मेन इम्यून सिस्टम को देखने वाला लंग्स के अंदर जो है वो है एल्वियोलर मैक्रोफेज, और वो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे जो नॉन स्पेसिफिक है, पैथोजन को डिटेक्ट करेंगे एंड इट विल बी एलिमिनेटेड। वो मैक्रोफेज का कैसा करके इफेक्ट होता है उसका अलग वीडियोस हो सकता है, या कैसे काम करते हैं वो तुम्हारा सेकेंड ईयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत काम आएंगे, बहुत सारे जगह काम आएंगे, बट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओनली, राइट। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग। बट अब देखो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सर बोले, ऑलरेडी 3 कॉम्प्लिकेशन बोले हैं, देखो तो एस्फिक्सिया, हाइपोक्सेमिया एंड हाइपरकैप्निया। और कॉम्प्लिकेशंस क्या है ध्यान से समझना, अगर ये सर्फेक्टेंट नहीं बना या बनने से रुक गया, अंडरस्टैंड दिस प्रोपोजिशन, इफ दिस सर्फेक्टेंट, व्हाट आई एम सेइंग, इफ दिस सर्फेक्टेंट इज बेसिकली व्हाट, ये अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये सर्फेक्टेंट कौन रिलीज कर रहा था, न्यूमोसाइट टाइप 2। अब ये सर्फेक्टेंट अगर नहीं बना, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन,
देखो एक कॉम्प्लिकेशन का नाम बोल रहा हूं, उसका नाम है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब है कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। इट इज कॉल्ड एज कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई। अब ये एटेलेक्टेसिस, ये जो एटेलेक्टेसिस का नाम बोले हैं कब होगा? जब न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल्स will fail to give this surfactant which is called by the name of lecithin। और lecithin के बारे में मैं क्या बोला, याद करके देखो, it is also called by dipalmitoyl phosphatidylcholine। it is also called by the name as dipalmitoyl phosphatidylcholine। तो लंग्स के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस या एल्वियोलाई के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस, उसका सरफेस एरिया क्या है, कैसे बनते हैं सरफेस एरिया, प्राइमरी सरफेस एरिया बनने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द नंबर नियर नंबर 300 मिलियन। इसके लिए उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज सरफेस हो जाता है। नहीं होगा तो क्या होगा, उसका भी बोले थे 3 कंडीशन बोले थे, एस्फिक्सिया, हाइपोक्सिमिया एंड हाइपरकैप्निया। एंड ऑल्सो कौन सा टिश्यू रहेंगे एल्वियोलाई में, प्राइमरी टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन विच इज इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट, विच इज फ्लैट सेल्स। और इम्यून सिस्टम कैसे प्रोवाइड होंगे वो भी बोले थे। कौन कौन सा न्यूमोसाइट का क्या काम है वो मुझे बताए हैं, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये प्रॉपर इस चीज का ये बात किए हैं। बस एक चीज को मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा, अगर किसी को डीपीपीसी का बारे में थोड़ा जानना है, सो आई विल टेल इन दिस क्लास इटसेल्फ। देखो अब इसको अगर तुम लोग एक क्लिक उठा लो तो बेहतर रहेगा। इसका एक क्लिक उठा लो पहले बढ़िया से, फिर हम डीपीपीसी क्या है उसको मैं दिखाता हूं, ठीक है। फॉस्फेटिडिलकोलिन क्या है दिखा देता हूं, ठीक है। यू टेक द क्लिक ऑफ इट, I'll wait for a few seconds. Yeah. So I'll rub the board. And I'll just show what is phosphatidylcholine, which is present in the as a surfactant on the surface of the alveoli. और कहां से आता है वो देख, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। हम क्या बोल रहे थे कि वी वर टॉकिंग अबाउट फॉस्फेटिडिलकोलिन, जिसका नाम क्या बोल रहे हैं बाबा, लेक्सिथिन, यही बोले थे ना। तो हम क्या बोल रहे थे कि कैसे करके ये बनते हैं, राइट। तो देखो तुम लोग अगर लिक्विड केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, अगर डाइग्लिसराइड जैसे बनाते हैं वो कैसे करके बनाते हैं, देखो तो ऐसा करके बनाएंगे कि नहीं, CH2O C डबल बॉन्ड, CH2O C डबल बॉन्ड O R1 अगेन CH2O C डबल बॉन्ड R2, R1 R2 क्या है, एलिफेटिक ग्रुप से। R क्या है हम लोग को पता है ना, these are called the aliphatic groups, है ना। तो और इसमें ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहां पे बहुत मजा आ जाएगा। CH2OH, इसके साथ ऐड करना क्या, ये डाइग्लिसराइड बन गया ग्रुप, दिस इज अ डाइग्लिसराइड, है ना। अब इस डाइग्लिसराइड के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, क्या होगा, इस डाइग्लिसराइड के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, देखो तो फॉस्फोरिक एसिड, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो फॉस्फोरस क्या है, पेंटावैलेंट है, 1 2 3 4 5, जहां पे एक बाइवैलेंट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 3 मोनोवैलेंट OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हम लोग को पता है फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4 देख लो प्रॉपरली, H 1 2 3 H3PO4, 1 2 3 4 हो गया ना फॉस्फोरिक एसिड। सो इस पेंटल वैलेंसी भी मेंटेन कर रहा है, देख पा रहे हो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं, द OH ग्रुप ऑफ द डाइग्लिसराइड, ध्यान से समझना, इसको अगर थोड़ा ऑल्टर कर देते हैं तो और तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, द OH ग्रुप ऑफ द डाइग्लिसराइड एंड द H ग्रुप ऑफ
of the phosphoric acid. तो alcohol group of the lipid and acidic group of the phosphoric acid. ध्यान से देखो, ये phosphoric acid है, this is the phosphoric acid. तो देखो यहां पे ये एसिडिक ग्रुप है यहां से, और यहां से जो है ये कौन है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है. अब देखो अल्कोहल और एसिड के बीच जैसे वहां से वाटर एलिमिनेट हो जाता है तो कौन सा लिंकेज बनाएगा, एस्टर लिंकेज. अल्कोहल और एसिड के बीच कौन सा लिंक होता है, एस्टर लिंकेज. एसिडिक ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड का और अल्कोहल ग्रुप डाइग्लिसराइड के बीच एस्टर लिंकेज बन के क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर क्या बन गया बाबा, पहले बोला था क्या बना है इसको, ये बन जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू फॉस्फेटिक एसिड. दिस विल गेट कन्वर्टेड टू फॉस्फेटिक एसिड. तो बना सकते हो फॉस्फेटिक एसिड कैसा होगा, CH2O C डबल बॉन्ड O फर्स्ट एलिमेंटिक ग्रुप, CH2O C डबल बॉन्ड O सेकेंड एलिमेंटिक ग्रुप होगा ना. और नीचे देखो कैसे बनाना है, इजी है. क्या क्या बना है, यहाँ पे CH2 है और यहां से O है, देख लो है ना, दिस इज O, P डबल बॉन्ड O. फिर यहां से क्या हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी OH. अब देखो यहां पर क्या बन गया, यहां पे कौन था, OH. नाउ यू कंसीडर दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज फॉस्फेटिक एसिड. दिस वन इज व्हाट, दिस इज योर phosphatidic acid. Now you consider one thing very carefully over here. You kindly consider one very important thing over here. अब देखो अगर इस H को हम लोग X कंसिडर करें, if I consider this one as the X, अब ये X को if we replace X with कौन सा ग्रुप हम X को रिप्लेस करके इसका फॉस्फेटिडिल कोलिन बना सकते हैं, है ना बाबा, कौन सा ग्रुप रिप्लेस करके यहां पे फॉस्फेटिडिल कोलिन बना सकते हैं. देखो तो ये ग्रुप CH2 N CH3 and CH3. This is the choline group that we are talking about. This one is your choline group. अब ये choline group जैसे तुम ये H ग्रुप को रिप्लेस कर दोगे, so it will become what? It will become phosphatidyl choline. Just इस H ग्रुप को रिप्लेस कर दो, ये ग्रुप दूसरा उसके अंदर, so it becomes phosphatidyl choline. And this phosphatidyl choline is basically present in as surfactant which is being secreted by the pneumocyte type 2. और ये अगर बंद हो गया, कोलिन ग्रुप बनना बंद हो गया या फिर सर्फेक्टेंट रिलीज हो जाना बंद हो गया, so it will give rise to a condition that is called the collapsing of the alveoli, which is physiological terms में उसको बोलते हैं क्या, atelectasis. So that will be it for today's. You can take this snap also. ये छोटा बायोमोलिक्यूल फर्स्ट ईयर में है तुम्हारा इस चैप्टर में, कोलिन फॉस्फेटिक एसिड कहां से बनते हैं, डाइग्लिसराइड का ही है, ये अनकंपाउंड है, कंपाउंड लिपिड है. ये थोड़ा बेसिक चीज बताया कि कोई किसी को अगर दिक्कत हो कि सर कोलिन ग्रुप क्या, कितना बड़ा नाम दिए थे, डाइपामिटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, लेसिथिन याद रखो, तो लेसिथिन याद रखने से भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है. तो इसको भी तुम एक स्नैप ले लो. ओके, thank you, and that will be it for today's lecture, and I'll come back with the next lecture with the structure of the diaphragm, larynx and mechanism of breathing. Thank you.